Very good morning, students. So we are doing chapter My Childhood. That is an extract from Dr. APJ Abdul Kalam's autobiography, Wings of Fire. Okay. So we are doing from page number 72. Okay. So I told you about his science teacher. Okay, students. So can you tell me what is the name of his science teacher? Yes, students. What was the name of Abdul Kalam's science teacher? Yes, it was Siva Subramania Iyer. Okay, so Siva Subramania Iyer, he was a very great person, a person with progressive mind, liberal mind. Okay, he had not any religious narrow-mindedness in spite of being Hindu Brahman. Okay, he was having a very open mind. Okay, he possessed religious tolerance, means he respect other religions and communities. Okay, but his wife was very conservative. Okay, what is the meaning of conservative? Conservative means that do not want to change. Okay, जो पुराने विचार हैं उन्हीं पे विश्वास रखना और अपने आप को चेंज नहीं करना. That is called conservative. So his wife was very much conservative कि हम ब्राह्मण हैं, ये मुस्लिम है, ठीक है. तो इन चीज़ों के लिए उसकी वाइफ बड़ी पर्टिकुलर थी. तो ये लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था. So today we will start from next chapter, next paragraph of page 72. Okay. So one day he invited me to his home for a meal. His science teacher, Siva Subramania Iyer. Okay. One day his science teacher invited him to his home for a meal. Okay. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. Horrified. Horrified means, yes, terrified or frightened. Okay. And ritually, what is the meaning of ritual? Established customs, okay, या established ceremonies or customs. तो ritually जो according to ritual, according to Brahman people, Brahman class, तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्योरिटी में बिलीव करते थे. okay, तो in that way her kitchen was very much pure. अगर उसमें कोई मुस्लिम आएगा, मुस्लिम खाएगा, तो उसकी किचन इम्प्योर हो जाएगी. तो ये सुन के ही वो डर गई, वो हॉरिफाइड हो गई कि एक मुस्लिम जो स्टूडेंट हमारे घर आएगा और हमारे घर खाना खाएगा. ओके. हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन. शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन. ओके. शी फ्लैटली रिफ्यूज्ड दैट शी वुड नॉट सर्व दैट बॉय इन हर kitchen. So Siva Subramania Iyer was not perturbed. He was not disturbed at the behavior of his wife, nor did he get angry with his wife. ना ही वो उस पे गुस्सा हुए, क्योंकि उनको पता था कि वो इतनी कंजर्वेटिव है. ठीक है. But instead he served me with his own hands. Okay. उन्होंने बड़ी टेक्टफुली सिचुएशन को संभाला कि उसको भी बुरा ना लगे. ठीक है. एपीजे अब्दुल कलाम को he served him with his own hands and sat down beside me to eat his meals. और उसके साथ बराबर बैठ के खाना खाया एपीजे अब्दुल कलाम के साथ. ओके. His wife watched us from behind the kitchen door, and while they were taking their meals, the wife of the teacher was watching them. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. Okay, I wonder. I was thinking. Okay, I was surprised to think that why she was watching us and why she could have refused to serve me in her kitchen. Okay, तो ये क्या देखना चाह रही थी? क्या हम किसी अलग ढंग से खाते हैं, क्या हम सफाई से नहीं खाते हैं,
या हम बाद में जहाँ पे खाना खाते हैं उस जगह को साफ नहीं करते हैं, ठीक है। सो आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड, नोटेड डाउन एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस और ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द meal. When I was leaving his house, Siva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Okay, when he was going to leave their house, his teacher invited him again for the next weekend. Observing my hesitation, but I was hesitating. What is the meaning of hesitation? To be slow in doing or acting. जिसको हम बोलते हैं ना हिचकिचाना, तो वो हिचकिचा रहा था क्योंकि उसकी वाइफ को पसंद नहीं था, टीचर की वाइफ को, इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम हिचकिचा रहा था कि उनके प्रपोजल को कैसे डिनाई करे। वो उसको दोबारा से इनवाइट कर रहे हैं खाने पे। ओके, ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट एंड सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड मैंने इसका मीनिंग लास्ट चैप्टर में भी आपको एक्सप्लेन किया था। कन्फ्रंटेड मीन्स टू फेस, किसी चीज का सामना करना। तो उसको समझाते हैं कि अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें सिस्टम को चेंज करना है तो ऐसी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ेगा, ऐसी प्रॉब्लम्स की कन्फ्रंटेशन हमें करनी पड़ेगी, ऐसी प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। सो यू नीड नॉट टू हेजिटेट। When I visited his house the next week, Siva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. Okay, तो next time जब वो गया तो this time the behavior of his teacher's wife was changed. She took him to kitchen and served him with her own hands. अपने हाथों से खाना खिलाया, बड़े प्यार से खाना खिलाया और अपनी किचन में खाना खिलाया। ओके, देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज imminent. Okay, further moving, he is telling that second world war was about to over, it was over, sorry, and India's freedom was imminent. What is the meaning of imminent? Imminent means that is likely to happen any time, कि ये होना ही था, likely to happen any time. Okay, so India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared गांधी जी। तो उस समय गांधी जी ने ये डिक्लेयर भी किया कि Indians will build their own India. Okay, now they are going to get freedom. फ्रीडम जो इनएविटेबल थी, होनी थी, उनको अब आज़ादी मिलने वाली थी, ठीक है, कि अब इंडियंस मिलके एक नया इंडिया बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग क्या होता है? नेवर सीन बिफोर। अनप्रेसिडेंटेड, नेवर सीन बिफोर। ओके, सो ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म? टू बी होपफुल। ओके, सो द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म नेवर सीन बिफोर. Everybody was so much hopeful. Everybody was so much hopeful for their future that they can now fill their desires. Okay, they can do anything they want to do. They were very much hopeful. Okay, so I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. तो एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा कि मैं फर्दर स्टडी यहाँ इस छोटी जगह को छोड़ के मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम में जाके स्टडी करना चाहता हूँ। ये उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट करी। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पेज, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। ओके, तो बहुत अच्छी बात उसके फादर ने उसको बोली और ऐसे बोली जैसे कि उन्होंने वो सोच ही रहे हैं वो बात और साथ साथ बोल रहे हैं। एक्चुअली इट वॉज देयर थॉट्स। ओके, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि तुम्हें जाना पड़ेगा तभी तुम ग्रो कर पाओगे। अगर हम बाहर निकलेंगे, हाइट्स को अगर हमें छूना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके, तो हमें अपने आप को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, हमें फ्री करना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपने बच्चों को घर से बाहर भेजना पड़ेगा। ओके, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन,
and without a nest. Seagull, it is a name of a bird. Okay, वो सन के आस बहुत हाइट्स पे वो फ्लाई करती है, अकेली फ्लाई करती है, ठीक है, और उसके पास कोई नेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। अगर वो साथ ढूंढने लगे तो वो इतनी हाइट्स पे नहीं फ्लाई कर पाएगी, ठीक है। So in this way you have to fly, okay, you have to touch the heights. If you want to do something in life, you must do. He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. His mother, being a mother was little bit hesitant अपने बच्चे को बाहर भेजने में, पर उन्होंने उसकी मदर को कैसे समझाया? खलील जिब्रन की एक कोटेशन बता के। खलील जिब्रन इज एन अमेरिकन पोएट, राइटर एंड ए ग्रेट पेंटर ऑल्सो। उसकी एक कोट बताई कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे ही नहीं हैं, ठीक है, वो लाइफ के भी बच्चे हैं अपनी, so that they can fulfill their longings for itself. जो भी उनकी लाइफ में longings हैं, desires हैं, वो उनको fulfill करना चाहते हैं, ठीक है। लाइफ ने उन्हें जो भी proposals दिए हैं, ठीक है, उनके सामने जो ड्यूटीज रखी हैं उसको उन्होंने पूरा करना है, ठीक है। What is the meaning of longing? Desires. They come through you but not from you. ठीक है, आपने पेरेंट्स उसको बच्चे को पैदा जरूर करते हैं, ठीक है, बट नॉट फ्रॉम यू। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ तुम्हारे ही हैं, उनकी थॉट्स भी तुम्हारी ही होंगी। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। आप उनको अपना प्यार दे सकते हो, बट अपनी थॉट्स हमें हमेशा उन पर इम्पोज नहीं करनी चाहिए। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनकी अपनी भी थॉट्स होती हैं। Let them go, let them grow, and let them move free in the outside world. Okay, students?